کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشاعرہ جناب مشتاق احمد یوسفی کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے تو اسی رعایت سے جناب جنید بہادر خان صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ آ کے جناب مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جناب جنید بہادر خان صاحب. یہ انتہائی مشکل کام ہے میرے لیے کہ اقبال حیدر صاحب کی، ڈاکٹر سید نوید صاحب کی، شائستہ رضوی، پروین سلطانہ صبا صاحبہ اور ڈاکٹر صدیقی صاحب کے ہوتے ہوئے میں کچھ کہوں، اور وہ بھی مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسی شخصیت کے لیے. اور مشتاق احمد یوسفی کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ بات، 3 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے اندر جو شاعر ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، جو مصنف ہے، وہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کو زبان دیتا ہے. وہ بات جو ہم نہیں کہہ سکتے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا بھی خیال شاید کہیں نہ کہیں ٹوٹا پھوٹا ویسا ہی ہوتا ہے، مگر ہم ان کو زبان اور الفاظوں کی شکل میں خوبصورت طریقے سے بیان نہیں کر پاتے. شاعر وہ ہمارے درد کو لے کر، ہمارے دکھ کو لے کر واپس ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں یہ دکھ ہے، تمہیں یہ درد ہے. کیونکہ اقوام میں ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے درد اور دکھ کو بیان کرنے کا اور سمجھنے کا سلیقہ نہیں آتا. دوسری اہم بات کہ جو مزاح ہے، مزاح لکھنا، عام طور پر تو حبیب جالب ہمارے، فیض ہمارا اور اقبال جیسے لوگ جو فلسفہ خودی لکھتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کچھ مسائل ہیں جن کو آپ ایک دم سر نہیں ڈیل کر سکتے. آپ ان کے ہیڈ آن کلوژن جو ہوتی ہے مسائل کے ساتھ، وہ نہیں کر سکتے. آپ کو ہنستے مسکراتے اس سماج کے نبض پر ہاتھ رکھ کر اسے بتانا ہے کہ یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے. مشتاق احمد یوسفی وہ عہد تھا جس نے ہمیں ہنستے ہنستے وہ سکھایا جو ہم روتے روتے نہیں سیکھ پا رہے تھے. مشتاق احمد یوسفی نے ہمیں یہ ڈھنگ دیا کہ آپ نے اپنے سماج میں خواتین سے رویہ کیا رکھنا ہے. وہ سماج جو اینٹی فیمنسٹ تھا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس سماج میں سیاسی رویوں کو جو ہمارے درمیان میں تقسیم پیدا کرتے ہیں، ان کو ہنسی میں کیسے ٹالنا ہے. اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ملائیت کا جن تم پر حاوی ہو رہا ہے، اس کے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا لطف لے کر نجات حاصل کرنا ہے. یہ ہمیں بتایا. یہ بتایا کہ پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ یہاں پر غریب لوگوں کے مسائل کا حل ہوں گے. اس لیے بنایا تھا کہ ایک عوام کے لیے کام ہوگا، مگر کن لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا، ان سے نجات کیسے حاصل. یہ وہ دکھ اور درد ہیں جو بے شمار شعراء بھی بتاتے رہے، مصنف ادیب لکھتے رہے، مگر مشتاق احمد یوسفی نے جیسے بتایا، ہم نے کہکا لگایا مگر بات سمجھ میں آ گئی. یہ سب سے عمدہ اور بنیادی چیز ہوتی ہے. جب تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم پاکستان سے جب یہاں آ جاتے ہیں، چونکہ یہ مشاعرہ کینیڈا میں ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اپنی پوری تہذیب اور نسلیں یہاں پر لے کر آئے ہیں. ہم نے اپنی نسلیں یہاں پروان چڑھانی ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہے، یہی ہماری جگہ ہے، اور یہی ہماری اب تہذیب ہے، جہاں پر ہم دنیا بھر سے 200 کے قریب مختلف زبانیں لے کر آئے ہیں. اب ہم نے یہاں پر کیسے رہنا ہے، ہم نے یہاں پر رہنے کا ڈھنگ رنگ کیا ہونا چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کے لیے چونکہ ادیبوں کا، لکھنے والوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس شہر میں جب موجود ہیں تو ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو ہمیں یہاں کے مطابق بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی تہذیب میں ترقی کیسے ہونی ہے. لہٰذا یہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں پی سی اے والوں کا، میپل ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس طرح کے ایونٹ کا اہتمام کیا اور ہمیں یہ سننے کو ملا جو ہم سننا چاہتے تھے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بے شکریہ جنید. اب میں دعوت کلام دوں گی جناب محسن کاظمی صاحب کو. محسن کاظمی صاحب تشریف لائیے. چھوٹی بہر غزل اجازت. آگہی کا عذاب سہتا ہوں، آگہی کا عذاب سہتا ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. اب مجھے کوئی اور کام نہیں،
اب مجھے کوئی اور کام نہیں، ہر گھڑی سوچتا ہی رہتا ہوں، ہر گھڑی سوچتا ہی رہتا ہوں۔ میرے عقیدے کا شعر ہے کہ مال کھاتا ہوں مصطفیٰ کا میں، مال کھاتا ہوں مصطفیٰ کا میں، مرتضیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں، مرتضیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں۔ اور گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی، گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی، ماں کی حرف دعا میں رہتا ہوں۔ اور جنگ ہے وقت کے یزیدوں سے، جنگ ہے وقت کے یزیدوں سے، آج بھی کربلا میں رہتا ہوں، آج بھی کربلا میں رہتا ہوں۔ جون صاحب سے معذرت کے ساتھ ایز اٹ از مصرع کہ کتنا خاموش ہوں میں اندر سے، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے، ہر گھڑی بولتا ہی رہتا ہوں، اور ہر لمحے بولنے سے پہلے میں لفظ کو تولتا ہی رہتا ہوں۔ اجازت شائستہ باجی، کیونکہ ایک اور اس سے زیادہ مختصر کیا ہوگی، 3 منٹ میں ختم کر دیں۔ ایک پرانی پڑھ دیتے ہیں پھر کافی۔ ایک تماشا سی نظر آئی یہ دنیا ہم کو، ایک تماشا سی نظر آئی یہ دنیا ہم کو، دیکھتے ہم ہیں تماشے کو تماشا ہم کو، دیکھتے ہم ہیں تماشے کو تماشا ہم کو، اجنبی کر دیا ماحول نے اتنا ہم کو، اب تو اپنا نظر آتا نہیں اپنا ہم کو، اپنے ہونے کا بھی احساس ہمیں ہو جائے، اپنے ہونے کا بھی احساس ہمیں ہو جائے، کاش مل جائے کوئی دیکھنے والا ہم کو۔ شعر دیکھیے گا کہ ایک ہنگامہ الزام تراشی ہی رہا، ایک ہنگامہ الزام تراشی ہی رہا، ہم سمجھ پائے نہ دنیا کو نہ دنیا ہم کو، ہم سمجھ پائے نہ دنیا کو نہ دنیا ہم کو، اس سے گو ترک تعلق کو زمانہ بیتا، اس سے گو ترک تعلق کو زمانہ بیتا، یاد آتا ہے مگر وہ ستم آرا ہم کو، اور کس کو اب اپنا کہیں کس سے محبت چاہیں، کس کو اب اپنا کہیں کس سے محبت چاہیں، راس آتا ہی نہیں دل کا لگانا ہم کو، راس آتا ہی نہیں دل کا لگانا ہم کو۔ شعر دیکھیے گا کہ بزم آرائی کیا کرتی ہے تنہائی بھی، بزم آرائی کیا کرتی ہے تنہائی بھی، چھوڑتی ہے کہاں تنہائی بھی تنہا ہم کو، بزم آرائی کیا کرتی ہے تنہائی بھی، چھوڑتی ہے کہاں تنہائی بھی تنہا ہم کو، خوف آتا ہے ہمیں اب تو مسیحاؤں سے، خوف آتا ہے ہمیں اب تو مسیحاؤں سے، اور کر دیتا ہے بیمار مسیحا ہم کو، اور کر دیتا ہے بیمار مسیحا ہم کو، اب بھی رہ رہ کے ہمیں یاد وہی آتا ہے، اب بھی رہ رہ کے ہمیں یاد وہی آتا ہے، بھولتا ہی نہیں وہ بھولنے والا ہم کو، بھولتا ہی نہیں وہ بھولنے والا ہم کو، اور تشنا سبت ہے تشنا لبی جب سے لبے دریا پر، سبت ہے تشنا لبی جب سے لبے دریا پر، پیاسا لگتا ہے ہر ایک ساحل دریا ہم کو، پیاسا لگتا ہے ہر ایک ساحل دریا ہم کو، حال دل اپنا بتایا نہ ہمارا پوچھا، حال دل اپنا بتایا نہ ہمارا پوچھا، بعد مدت کے ملا ایک شناسا ہم کو۔ شعر دیکھیے گا
کہ دیکھتے رہ گئے ہم اس کو بڑی حسرت سے، دیکھتے رہ گئے ہم اس کو بڑی حسرت سے، دیکھتا رہ گیا وہ چاہنے والا ہم کو۔ کچھ اشعار مصطفیٰ زیدی کے مجھے بہت پسند ہیں، اسے تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ سنائیں، تو چند اشعار۔ نظم کا عنوان ہے ایک اسرانہ۔ جانے محفل تیرا انداز سخن جو کچھ ہو، تیری افتاد تیرے دل کی لگن جو کچھ ہو، تجھ کو آتا ہو ستاروں سے کنایا کرنا، تو نہ سیکھا ہو خداؤں کو رعایا کرنا، لفظ کی اوٹ میں کھلتے ہوں معانی کیا کیا، بات بنتی ہو اشاروں کی زبانی کیا کیا، آج ٹوٹا یہ طلسم لب و سحر امکان، جب تیری جنبش ابرو سے نہ چٹکیں کلیاں، آج ٹوٹا یہ طلسم لب و سحر امکان، جب تیری جنبش ابرو سے نہ چٹکیں کلیاں، تو نے تسخیر و تعلق کے لیے کیا نہ کیا، تو نے تسخیر و تعلق کے لیے کیا نہ کیا، اس نے اظہار تو کیا وہم تمنا نہ کیا، اس نے اظہار تو کیا وہم تمنا نہ کیا، اے کہ تو شمع سر طور ہے کاشانوں میں، اے کہ تو شمع سر طور ہے کاشانوں میں، نام بھی اس نے نہ پوچھا تیرا مہمانوں میں، نام بھی اس نے نہ پوچھا تیرا مہمانوں میں۔ کیا بات ہے، اتنی انوکھی یہ نظم ہے کہ ورلڈ لٹریچر میں مشکل سے ملے گی۔ اب میں جناب اشرف خان صاحب کو دعوت کلام دوں گی۔ جناب اشرف خان صاحب تشریف لائیں۔ سہل ہو جائے سارا کچھ تو کیا حسن طلب ہوگا، سبھی پھر جانور ہوں گے کوئی نہ جاں بلب ہوگا، مصلحت عذر بن گئی ورنہ، مصلحت عذر بن گئی ورنہ، سر تو اکثر جنوں اٹھاتا ہے، مصلحت عذر بن گئی ورنہ، سر تو اکثر جنوں اٹھاتا ہے، ہم سے معافی ملی ہوئی ہے جسے ہم میں ہی وہ غدر مچاتا ہے۔ ایک قطعہ ہے، کوئی تو اعلیٰ و بالا، کوئی تو اعلیٰ و بالا ہمیں ملا ہوتا، کوئی تو اعلیٰ و بالا ہمیں ملا ہوتا، کوئی تو رمز و محبت کا سلسلہ ہوتا، کوئی تو اعلیٰ و بالا ہمیں ملا ہوتا، کوئی تو رمز و محبت کا سلسلہ ہوتا، کوئی تو ایسا بھی ہوتا کہ جس کے دم سے خیال فلک سے اوج ثریا سے جا لگا ہوتا۔ تیری باتوں کا ملال نظم، تیری باتوں کا ملال، تیرے ماتھے کا ہلال، تیری باتوں کا ملال، تیرے ماتھے کا ہلال، روح میں دور تلک جاتا ہے، تیری باتوں کا ملال، تیرے ماتھے کا ہلال، روح میں دور تلک جاتا ہے، آہ بھرتی ہے جہاں پر شبنم، ہو سا جاتا ہے جہاں دل پرنم، جو بھی بے باک ادا ہے وہ رہے، جو بھی گستاخ صدا ہے وہ رہے، دل الجھتا ہی رہے گا تیری زیبائی میں بھی لڑتا ہی رہوں گا میری تنہائی میں۔ زندگی میں پستیاں آئیں بہت آئے فراز، تل ملا اٹھتا کبھی دل ہو کبھی جاتا گداز، زندگی میں سر بسجدہ بھی کئی لمحے ملے، سر پٹکتے چیختے چنگھاڑتے کچھ سلسلے، زندگی میں سر بسجدہ بھی کئی لمحے ملے، سر پٹکتے چیختے چنگھاڑتے کچھ سلسلے، کچھ مقام عشق آئے، کچھ مقام انتقام،
बूंद की ख्वाहिश कभी मरमरी हाथों के जाम, उस मोहब्बत को सलाम जो कभी दिल में रही, उस कसक को हो दवाम जो कभी दिल में रही। तूने मुझ में फूंक दी है रूह मुस्तर क्यों भला, ओ जुदा ओ बरगुजीदा ओ खुदा। अरे निगारे हुजूर में अब, अरे निगारे हुजूर में अब अजीब खिल्लत का मरहला। इस तवाज़ो का मैं क्या करूं। अरे निगारे हुजूर में अब अजीब खिल्लत का मरहला है, अजीब बेजाए बेसबाती अजीब जिंदान मुब्तला है। अरे निगारे हुजूर में अब अजीब खिल्लत का मरहला है, अजीब बेजाए बेसबाती अजीब जिंदान मुब्तला है। अरे कि ये दिल बुझा है, अरे कि ये दिल गुरेज पा है, अरे कि ये दिल बुझा है, अरे कि ये दिल गुरेज पा है, अरे कि ये दिल नसीम व निखत से कब का पहलू बदल चुका है। अरे कि ये दिल बुझा है, अरे कि ये दिल गुरेज पा है, अरे कि ये दिल नसीम व निखत से कब का पहलू बदल चुका है। अरे कि वो खत्तो खाल हम में, अरे कि वो खत्तो खाल हम में जो शेर होने को ढल रहे हैं, अरे कि वो खत्तो खाल हम में जो शेर होने को ढल रहे हैं। मेरे कलम की मुसव्वरी में अजब सरापा सा बोलता है। अरे कि वो खत्तो खाल हम में, अरे कि वो खत्तो खाल हम में जो शेर होने को ढल रहे हैं। मेरे कलम की मुसव्वरी में अजब सरापा सा बोलता है। अरे न पूछो, अरे न पूछो, अरे न पूछो अजीज तर जो रखा था हमने। अरे न पूछो अजीज तर जो रखा था हमने। मोहब्बतों का दिया वो अब भी जो ताक़े निसियां पे जल रहा है। अरे न पूछो अजीज तर जो रखा था हमने। मोहब्बतों का दिया वो अब भी जो ताक़े निसियां पे जल रहा है। मेरे मुनाफिक तमाम चेहरे न जल रहे हैं न बुझ रहे हैं। मेरे मुनाफिक तमाम चेहरे न जल रहे हैं न बुझ रहे हैं। मुझे कि नुसरत अता है उन पर कि मेरा उन सब पे दबदबा है। मेरे मुनाफिक तमाम चेहरे न जल रहे हैं न बुझ रहे हैं। मुझे कि नुसरत अता है उन पर कि मेरा उन सब पे दबदबा है। और हमारे अदवार में बहुत से बुलंदो बाला कवि हुए हैं। हमारे अदवार में बहुत से बुलंदो बाला कवि हुए हैं, मगर के उसलूब साहिराना जलीस लहजे में बोलता है। आइंदा सरमद जलीस के नाम से मुझे दिया। अशरफ खान फौत हो गया, ज़माना हुआ, अशरफ खान फौत हो गया। जी हाँ, सरमद जलीस। मैं अब सरमद के हवाले से सोचा है कि अब सूरत दरवेश रहेंगे। मतलब
सब अभी आगे सुने। सोचा है कि अब सूरत दरवेश रहेंगे, दुनिया के बखेड़ों से सुबुक दोष रहेंगे। सोचा है कि अब सूरत दरवेश रहेंगे, दुनिया के बखेड़ों से सुबुक दोष रहेंगे। खुलते हैं तसव्वुर में अलग रोज़न सीमी, खुलते हैं तसव्वुर में अलग रोज़न सीमी, दिखते हैं हवादिस वो जो दरपेश रहेंगे। खुलते हैं तसव्वुर में अलग रोज़न सीमी, दिखते हैं हवादिस वो जो दरपेश रहेंगे। और गो बाल से बारीक मज़ामीन जुनू हैं, गो बाल से बारीक मज़ामीन जुनू हैं, इस कल्ब के दरबार में सब पेश रहेंगे। गो बाल से बारीक मज़ामीन जुनू हैं, इस कल्ब के दरबार में सब पेश रहेंगे। और एक मौजे बला हमको लिए जाए वहाँ पर, एक मौजे बला हमको लिए जाए वहाँ पर, जिस जाना तमाशाए पसो पेश रहेंगे। एक मौजे बला हमको लिए जाए वहाँ पर, जिस जाना तमाशाए पसो पेश रहेंगे। सरमद न तसल्ली न तशफ़ी न तजल्ली, सरमद न तशफ़ी न तजल्ली, सरमद न तसल्ली न तशफ़ी न तजल्ली, गो जुर्रत इज़हार है खामोश रहेंगे। गो जुर्रत इज़हार है खामोश रहेंगे। जिस हस्ती को दावत कलाम देने वाली हूँ वो आप, हमारे एज़ाज़ है कि हमारे शहर में टोरंटो से आई हुई हैं हमारी मेहमान शायरा, और उनका ये एज़ाज़ है कि उनकी ये पहचान है कि वो कलम और मुँह कलम दोनों के इज़हार की माहिर हैं। उनकी तस्वीरों की नुमाइश अनकरीब टोरंटो में होने वाली है। बहुत अच्छी मुसव्विरा, बहुत अच्छी शायरा, बचपन से लिख रही हैं। विदाउट फर्दर अड्यू जनाब परवीन सुल्ताना सबा। इससे पहले कि कुछ अशार पेश करूं, थोड़ी सी बातचीत। एक तो पीसीए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। जनाब सदर का, बाकी तमाम इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया। और कैलगरी शहर में मुझे अंदाज़ा नहीं था, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग, पढ़ने वाले लिखने वाले सब, और इकबाल भाई की मौजूदगी यहाँ पे जो है वो वाकई एक छत्तर छाया जिसको कहना चाहिए बरगद की हैसियत रखते हैं, उनकी मौजूदगी। और फिर डॉक्टर साहब, मेरी खुशनसीबी कि आपकी मौजूदगी में मैं यहाँ हूँ, और क्योंकि साइंस की एक स्टूडेंट भी हूँ तो ये भी मेरी एक खुशनसीबी है। और उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात जो आज के प्रोग्राम की है कि ये प्रोग्राम यूसुफ़ी साहब के हवाले से हो रहा है, और उस प्रोग्राम में मुझ जैसे नाचीज़ को भी मौका मिला है कि मैं उसका हिस्सा बनूं, तो बेहद शुक्रिया आप सबका। अब मैं चाहूँगी इजाज़त आपसे, जनाब सदर की इजाज़त। उसके लिए मैं कहूँगी कि पूरे ज़र्द मौसम में एक नए शगुफ़े ने झांक कर ये पूछा है, क्या मुझे इजाज़त है? बड़ी नवाज़िश। पीसीए और यहाँ के सब कैलगरी वालों के लिए, आप सब के लिए एक शेर के, तेरे प्यार के यही 4 पल, तेरे प्यार के यही 4 पल मेरी ज़िंदगी की असास हैं।
तेरे प्यार के यही 4 पल मेरी ज़िंदगी की असास हैं, इन्हें मेरे साथ चल, इन्हें तूल दे, इन्हें माह कर, इन्हें साल कर। तेरे प्यार के यही 4 पल मेरी ज़िंदगी की असास हैं, मेरे साथ चल, इन्हें तूल दे, इन्हें माह कर, इन्हें साल कर। नवाजिश। एक किताब कि इल्म व हिकमत के दरीचे दिल की जानिब खोल दे, इल्म व हिकमत के दरीचे दिल की जानिब खोल दे, हुस्न यूसुफ को जुलेखा की नज़र से तोल दे। इल्म व हिकमत के दरीचे दिल की जानिब खोल दे, हुस्न यूसुफ को जुलेखा की नज़र से तोल दे, और संग तराशी के हुनर में पाऊँ वो औजे कमाल, संग तराशी के हुनर में पाऊँ वो औजे कमाल, आईना जब सामने आए तो पत्थर बोल दे। इल्म व हिकमत के दरीचे दिल की जानिब खोल दे, हुस्न यूसुफ को सलीक़े, हुस्न यूसुफ को जुलेखा की नज़र से तोल दे, और संग तराशी के हुनर में पाऊँ वो अजय कमाल, आईना जब सामने आए तो पत्थर बोल दे। कुछ तो हमारे जो हालात हैं वो हम लोगों को साथ साथ बैठे यहाँ हैं, लेकिन दिल दिमाग पाकिस्तान में लगा रहता है, तो वहाँ के हवाले से कुछ एक आध कतात और कुछ उसके गज़लों के अशार पेश कर दूँगी। तो बम ब्लास्ट एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उस वक्त ये एक कथा हुआ था कि शहादत के बाद किस जगह शौक़ शहादत की बिना पहुँचे हैं, किस जगह शौक़ शहादत की बिना पहुँचे हैं, पेट पे बांध के बम कौन सी जा पहुँचे हैं, पेट पे बांध के बम कौन सी जा पहुँचे हैं, उनसे कह दीजिए बारूद ज़रा कम डालें, उनसे कह दीजिए बारूद ज़रा कम डालें, हम तो जन्नत से भी आगे कहीं जा पहुँचे हैं। आपकी फरमाइश पे दोबारा कि किस जगह शौक़ शहादत की बिना पहुँचे हैं, पेट पे बांध के बम कौन सी जा पहुँचे हैं, उनसे कह दीजिए बारूद ज़रा कम डालें, हम तो जन्नत से भी आगे कहीं जा पहुँचे हैं। बड़ी नवाजिश। और हर जगह शोरा में और हर फील्ड के लोगों में छोटे बड़े होते हैं, और कुछ ज़्यादा अच्छे कुछ कम, और लेकिन चीज़ें चलती रहती हैं, मुकाबलेबाजी। एनीवेज, जो पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं, जो पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं, जो कद दराज हैं अपनी हदों से बाहर हैं। जो पस्ता कद हैं वो अपने कदों से बाहर हैं, जो कद दराज हैं अपनी हदों से बाहर हैं, जो मुल्क में हैं उन्हें मुल्क से लगाव नहीं, जो मुल्क में हैं उन्हें मुल्क से लगाव नहीं, जिन्हें लगाव है वो सरहदों से बाहर हैं। कतात के बाद मैं एक आध शेर गज़ल का भी पेश कर दूंगी। एक और कता है कि फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, यानी कि जानबूझ के सुए अजल चलूँ, फिर उनकी बारगाह में लेकर गज़ल चलूँ, यानी कि जानबूझ के सुए अजल चलूँ, और दुनिया को सीधा देखने के शौक़ में सबा, दुनिया को सीधा देखने के शौक़ में सबा, अब और कितनी दूर तलक सर के बल चलूँ। एक नात के 2-3 शेर हैं, वो पेश करके और फिर गज़लों के अशार पेश करती हूँ कि एक नात लिखूँ ये शौक़ हुआ, एक नात लिखूँ ये शौक़ हुआ, इमदाद को फ़ौरन आई अता, एक नात लिखूँ ये शौक़ हुआ, इमदाद को फ़ौरन आई अता, अभी नाम मोहम्मद लब पे ही था, खामे ने लिखा सुभान अल्लाह, अभी नाम मोहम्मद लब पे ही था, खामे ने लिखा सुभान अल्लाह, महबूब को जिस दम खल्क किया, महबूब को जिस दम खल्क किया, अल्लाह को ख़ुद पे फ़ख्र हुआ, महबूब को जिस दम खल्क किया, अल्लाह को ख़ुद पर फ़ख्र हुआ, वो ख़ुद भी खुशी से झूम उठा,
चुपके से कहा सुभान अल्लाह। एक नूरे मोहम्मद के सदक़े ये शम्स व कमर तख्लीक किए, एक नूरे मोहम्मद के सदक़े ये शम्स व कमर तख्लीक किए, और अर्श बरी की चादर पर तारों से लिखा सुभान अल्लाह। और जिब्रील ने जाके अर्श पे जब इस बज़्म नबी का ज़िक्र किया, जिब्रील ने जाके अर्श पे जब इस बज़्म नबी का ज़िक्र किया, अज़ हज़रत आदम ता ईसा सभी ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस खाक पे उनका पाँव पड़ा, वो खाक हुई अफलाक सबा, उस खाक के ज़र्रे ज़र्रे से आती है सदा सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। नवाज़िश एक दो शेर, एक मतलब और दो शेर के, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, दोस्तों का दूर साहिल से समंदर देखना, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, दोस्तों का दूर साहिल से समंदर देखना। और हम कई सदियां तुम्हारे नाम पर लिख जाएंगे, हम कई सदियां तुम्हारे नाम पर लिख जाएंगे, तुम भी एक लम्हा हमारे नाम लिख कर देखना, तुम भी एक लम्हा हमारे नाम लिख कर देखना। और मर मिटे हो जिसके तुम चश्मो लबो रुखसार पर, मर मिटे हो जिसके तुम चश्मो लबो रुखसार पर, उस बुते काफिर के बातिन का भी मंजर देखना, उस बुते काफिर के बातिन का भी मंजर देखना। और ये मेरा रंग है कि कैसा तूफ़ान हवादिस क्या तला तुम क्या भंवर, कैसा तूफ़ान हवादिस क्या तला तुम क्या भंवर, देख लो इन सब को तुम फिर मेरे तेवर देखना, कैसा तूफ़ान हवादिस क्या तला तुम क्या भंवर, देख लो इन सब को तुम फिर मेरे तेवर देखना। और है सबा हर रात की तकदीर में नूरे सहर, है सबा हर रात की तकदीर में नूरे सहर, रोशनी देखेगा मेरा भी मुकद्दर देखना, रोशनी देखेगा मेरा भी मुकद्दर देखना, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, और दोस्तों का दूर साहिल से समंदर देखना। बड़ी नवाजिश। एक दो अशार दूसरी गज़ल के, जहाँ स्टॉप करना मुझे बता दीजिएगा। जब नया मोड़ लेने को थी ज़िंदगी, वक्त ने एक नई दास्तां बख्श दी, जब नया मोड़ लेने को थी ज़िंदगी, वक्त ने एक नई दास्तां बख्श दी, नाम उनका मेरे दिल पे कंधा किया, नाम उनका मेरे दिल पे कंधा किया, यूं मुझे ज़िंदगी जावेदां बख्श दी। और उसकी नज़रों ने कुछ ऐसा जादू किया, उसकी नज़रों ने कुछ ऐसा जादू किया, ताकचों में दिए झिलमिलाने लगे, उसकी नज़रों ने कुछ ऐसा जादू किया, ताकचों में दिए झिलमिलाने लगे। एक दिया जल उठा हुजरे कल्ब में, एक दिया जल उठा हुजरे कल्ब में, जिसने उल्फत को सौते अज़ां बख्श दी। उसकी नज़रों ने कुछ ऐसा जादू किया, ताकचों में दिए झिलमिलाने लगे। एक दिया जल उठा हुजरे कल्ब में, एक दिया जल उठा हुजरे कल्ब में, जिसने उल्फत को सौते अज़ां बख्श दी। और मेरी आँखें मेरे कान मेरी ज़ुबां, मेरी आँखें मेरे कान मेरी ज़ुबां हाकिम वक्त ने रहन में रख लिए। मेरी आँखें मेरे कान मेरी ज़ुबां हाकिम वक्त ने रहन में रख लिए। हाथ पैरों को कटवा दिया बेख़ता, हाथ पैरों को कटवा दिया बेख़ता, पर ये ऐसा किया मेरी जान बख्श दी, पर ये ऐसा किया मेरी जान बख्श दी। और ख़ाक को ख़ाक करना ही मकसद था जब, ख़ाक को ख़ाक करना ही मकसद था जब, किस लिए फिर ज़बी पर खलीफा किया। ख़ाक को
खाक करना ही मकसद था जब, किस लिए फिर ज़मीं पर खलीफा किया, नेकियों के लिए कम मलाइक न थे, हमको ये जिम्मेदारी कहाँ बख्श दी। खाक को खाक करना ही मकसद था जब, किस लिए फिर ज़मीं पर खलीफा किया, नेकियों के लिए कम मलाइक न थे, हमको ये जिम्मेदारी कहाँ बख्श दी। और ऐ सबा हम तो गूंगी रियाया में थे, ऐ सबा हम तो गूंगी रियाया में थे, जुल्म के सामने लब हिलाते न थे। ऐ सबा हम तो गूंगी रियाया में थे, जुल्म के सामने लब हिलाते न थे। बोलना आ गया हमको हक के लिए, बोलना आ गया हमको हक के लिए, जब से उसने कलम को ज़ुबां बख्श दी, जब से उसने कलम को ज़ुबां बख्श दी। जब नया मोड़ लेने को थी ज़िंदगी, वक्त ने एक नई दास्तां बख्श दी, नाम उनका मेरे दिल पे गंदा किया, यूँ मुझे ज़िंदगी जावेदां बख्श दी। और अच्छा, ये एक ज़्यादा पुरानी नहीं है कि हुस्न की एक चिंगारी ने क्या खूब लगाई इश्क की आग, हुस्न की एक चिंगारी ने क्या खूब लगाई इश्क की आग, रुख पर जुल्फ का झोंका आया, रुख पर जुल्फ का झोंका आया और लहराई इश्क की आग। हुस्न की एक चिंगारी ने क्या खूब लगाई इश्क की आग, रुख पर जुल्फ का झोंका आया और लहराई इश्क की आग। और ये शेर के आँख से निकली एक दस्तक ने, आँख से निकली एक दस्तक ने दिल दरवाज़ा खोल दिया, आँख से निकली एक दस्तक ने दिल दरवाज़ा खोल दिया, और प्यार का एक गुलदस्ता थामे मिलने आई इश्क की आग, प्यार का एक गुलदस्ता थामे मिलने आई इश्क की आग। और पैर में चक्कर हाथ में कासा, पैर में चक्कर हाथ में कासा, दिल वालों की दुनिया में, पैर में चक्कर हाथ में कासा, दिल वालों की बस्ती में, प्यार की दौलत लेने निकले, हाथ में आई इश्क की आग। और दुनिया भर की नहरें, दरिया और समंदर सूख गए, दुनिया भर की नहरें, दरिया और समंदर सूख गए, सोनी अपने कच्चे घड़े में जब भर लाई इश्क की आग, सोनी अपने कच्चे घड़े में जब भर लाई इश्क की आग। और यूँ तो सबा हम हर मौसम में, यूँ तो सबा हम हर मौसम की आग में ज़िंदा जलते हैं, यूँ तो सबा हम हर मौसम की आग में ज़िंदा जलते हैं, सावन की रुत ने लेकिन खुलकर बरसाई इश्क की आग। आँख से निकली एक दस्तक ने, आँख से निकली एक दस्तक ने दिल दरवाज़ा खोल दिया, प्यार का एक गुलदस्ता था में मिलने आई इश्क की आग। दो किताब से और पेश करने हैं, वो बिल्कुल ताज़ा हैं, वो भी हाथ से लिखे हैं, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा कि कहाँ है। ये दो बिल्कुल ताज़ा हैं कि दोज़खो जन्नतो इनाम को बख्शो बाबा, दोज़खो जन्नतो इनाम को बख्शो बाबा, जो तुम्हारा नहीं उस काम को बख्शो बाबा, जो तुम्हारा नहीं उस काम को बख्शो बाबा। और मारने मरने को कोई और बहाना ढूंढो, मारने मरने को कोई और बहाना ढूंढो, अब मुसलमान और इस्लाम को बख्शो बाबा। बड़े दोज़खो जन्नतो इनाम को बख्शो बाबा, जो तुम्हारा नहीं उस काम को बख्शो बाबा, मारने मरने को कोई और बहाना ढूंढो, अब मुसलमान और इस्लाम को बख्शो बाबा। और एक और कथा है इसी तरह से कि हर रोज़ लहू की सुर्खी दी, हर रोज़ लहू की सुर्खी दी, हर रोज़ नए अखबार दिए, हर रोज़ लहू की सुर्खी दी, हर रोज़ नए अखबार दिए, फ़िरक़ों और मसलक की खातिर खून के रिश्ते वार दिए, फ़िरक़ों और मसलक की खातिर खून के रिश्ते वार दिए, मोमिन मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आंगन में,
मोमिन मोमिन खेल रहे थे बच्चे घर के आंगन में, एक जन्नत के मतवाले ने दोनों काफिर मार दिए। एक जन्नत के मतवाले ने दोनों काफिर मार दिए। एक ये पाकिस्तान वो नज़्म है एक, कोई ऐसी सहर भी आएगी, और ये मेरे यकीन भी है और उम्मीद भी है, तो आप सब भी उस पर आमीन कह सकते हैं। अगर ये हो जाए तो हम सब सुकून में हो जाएंगे। कोई ऐसी सहर भी आएगी जब ज़र ज़मीनों ज़न की खातिर झगड़े होना बंद होंगे। जब ज़र ज़मीनों ज़न की खातिर झगड़े होना बंद होंगे, जब रंगो नस्ल के पीछे ज़मीं के टुकड़े होना बंद होंगे, जब माँओं बहनों के आंचल के चिथड़े होना बंद होंगे। हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी। हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी। दहकाकर जुल्म के दोज़ख को, दहकाकर जुल्म के दोज़ख को अरमान न झोंके जाएंगे। दहकाकर जुल्म के दोज़ख को अरमान न झोंके जाएंगे। नादार का तन ढक जाएगा, नाचार भी रोटी खाएंगे। नादार का तन ढक जाएगा, नाचार भी रोटी खाएंगे। हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी। जब कागज़ चुनने वालों का, जब कागज़ चुनने वालों का झोला उजला हो जाएगा। जब कागज़ चुनने वालों का झोला उजला हो जाएगा। गलियों से चुना एक एक वरक आखिर बस्ता हो जाएगा। गलियों से चुना एक एक वरक आखिर बस्ता हो जाएगा। जब पूरी दुनिया वालों का बस एक खुदा हो जाएगा। हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी। बड़ी नवाज़, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत अशार, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत की मालिक ये थी परवीन सुल्ताना सबा। अब मैं मुशायरे का अख्तिताम है, और से पहले कि मैं सदर मुशायरा को दावत कलाम दूँ, शायद उनसे दरख्वास्त की गई है, अगर मुनासिब समझो तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के बारे में कुछ अल्फाज आप ज़रूर कुछ कहना, खुशी होगी अगर आप कुछ कहें। और जनाब इकबाल हैदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुस्तफ़ा ज़ैदी के एक शेर के साथ, खिज़फ़ की गोद में क्या था सिवाय गुमनामी, बस एक गौहर नायाब से ख़ज़ाना हुआ। जनाब इकबाल हैदर साहब। ये इन शल समातों और खाने की खुशबू के दरमियान कुछ पेश करने की कोशिश करूँगा। एक तो बड़ी ख्वाहिश है, जैसे आपने भी एक तसव्वुर जो दिया, ऐसे ही मुझे मुशायरे के मुतालिक मेरा जी ये चाहता है कि यहाँ से सदारती निज़ाम हट के पार्लिमानी निज़ाम आ जाए। तो हाँ, वो जब हम एक दफ़ा कराची में थे, अभी शाइस्ता ने मुझे कुछ देर पहले याद दिलाया था, कैफ़ी आज़मी साहब आए थे और मुतवातिर महफ़िलें हो रही थी। ये 1999 की बात है, जोश सदी के मौके पर बहुत बड़ी बड़ी महफ़िलें हुई। खैर, तो कई में वो सदर बना दिए गए बेचारे। तो जब आखिरी महफ़िल थी और उनका मसला ये था कि जो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है कि वो बेचारे व्हील चेयर बाउंड थे, तो वो बैठ जाते थे वहाँ, गरीब कोई उठाने वाला भी नहीं, हटाने वाला भी नहीं। तो एक दिन वो जब आखिरी महफ़िल थी तो उन्होंने नाम लिया जो मुंतज़िम आला थे, राहत सईद साहब। कहने लगे राहत सईद साहब को पता नहीं, इब्तदाई कलमात जब उनके शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि राहत सईद साहब को पता नहीं किसने बता दिया है कि मैं जूती चोर हूँ। तो अब सब चौंके कि ये कहाँ से लाए। तो कहने लगे कि भाई हमारे गांव में मजवा में जहाँ के थे वो आजमगढ़ के पास, वहाँ एक मस्जिद में जब नमाज होती तो जूतियाँ चोरी हो जाती थी। तो लोगों ने ये कहा कि भाई एक बच्चे को पेड़ पे बैठा दो, वो देखेगा कि जब जमात लग जाती है तो कौन आके चुराता है। तो एक दिन वो एक साहब आए, उस बच्चे ने शोर मचाया, लोगों ने आके उनको ओवर पावर कर लिया, पकड़ लिया। अब कहा सज़ा क्या दी जाए। कहें साहब सज़ा तो क्या दी जाएगी, अब इसमें ये करते हैं कि इसको पेश इमाम बना देते हैं, ये आगे खड़ा रहेगा तो जूती चुरा नहीं पाएगा। तो अब यहाँ भी यही मसला है, ये मुतवातिर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से या मार्शल लग जाए या ऐसा हो कि कोई ऐसी सूरत हो कि पार्लिमानी निज़ाम आ जाएगा, गोल मेज़ पे बैठ के सब बारी बारी सुना ले। अच्छा,
मुश्ताक यूसुफी साहब के बारे में ज़ाहिर है ये महफ़िल 3 in 1 है एक तरह से। डॉक्टर नवीद को भी ट्रिब्यूट हमें पेश करना है। जो लोगों ने तज़किरा किया डॉक्टर नवीद के मुतालिक कई महफ़िलें हुई भी हैं यहाँ पे और इनफ नहीं हो सकती, उनका जो कारनामा है होती भी रहेंगी। जहाँ तक यूसुफी साहब का ताल्लुक़ है वो यकीनी तौर पे एक अहद साज़ अदीब थे और उनका नाम जैसा कि कहा जाता है आम तौर पे कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक अलग से कम कैटेगरी की अपनी हैसियत में जो हमारी आबादी की तादाद है एज़ कम्पेयर टू हमारी मेन बॉडी जो पाकिस्तान या उर्दू बॉडी पाकिस्तान या इंडिया में होती है, कम हिस्सा बक़द्र जुस्सा कोई एक ऐसी महफ़िल होनी चाहिए जो मुख्तसरों के नाम से, ये नहीं कि एक मुशायरे में करके उनके वो कुल वल्ला पढ़वा दी। तो हाँ, बहुत बड़े आदमी थे और जैसा कि शाइस्ता ने कोट किया इंशा को, इंशा ख़ुद अपने राइट में बहुत बड़ा अदीब, शायर, तंज़ निगार, मिज़ाह निगार और उसके अंदर तंज़ का निश्तर भी बहुत अच्छा था। तो हमने बहरहाल अभी तो सोचा ही है इस पर कि यहाँ जोश लिटरेरी सोसाइटी के नाम से एक है एक अंजुमन जो तकरीबन पिछले 35-36 साल से है यहाँ पे, तो हम उसी से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंने कुछ लोगों से बात की है और बाकायदा प्रोग्राम होगा, वो सिर्फ मुश्ताक यूसुफी साहब पे होगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से लोग नहीं आए तो टोरंटो में अच्छी खासी तादाद मौजूद है हमारे लोगों की, रिसोर्स पीपल। आपने देखा अभी एक नमूना टोरंटो से मतलब सैंपल के तौर पे अदब का वहाँ से, और अभी तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग इनके साथ के और भी बैठे हुए हैं, वहाँ से बुलाया जा सकता है। अच्छा, अब शेर सुनाने की बारी है। तो मुझे नहीं पता कि नज़्म सुनाऊँ या गज़ल सुनाऊँ, सभी चीज़ें आप लोग भुगत चुके हैं। मज़ीद भुगतने के लिए तैयार। हाँ, अच्छा, भुगतुन मज़ीदुन। हाँ हाँ, देखो जन्नत से उधर मत निकल जाना। बहुत निकल चुकी। एक गज़ल इससे पहले भी कुछ रहा होगा, इससे पहले भी कुछ रहा होगा, कुछ नहीं से तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं से तो कुछ नहीं होता, बोझ तारे निगाह पे मंज़र, बोझ तारे निगाह पे मंज़र, एक यकसानियत है हर जलवा, एक यकसानियत है हर जलवा, वक्त बस एक ही ज़माना है, वक्त बस एक ही ज़माना है, और माज़ी व हाल सब फ़र्दा, वक्त बस एक ही ज़माना है और माज़ी व हाल सब फ़र्दा, ए नज़र साज आईना महरम, ए नज़र साज आईना महरम, तुझ बसीरत को क्या खुदा पर्दा, ए नज़र साज आईना महरम, तुझ बसीरत को क्या खुदा पर्दा, रोशनी रोशनी से मिलती है, रोशनी रोशनी से मिलती है, तू ही होता गया हर एक तुझसा, तू ही होता गया हर एक तुझसा, एक तमाशा है दीदो दिल भी, एक तमाशा है दीदो दिल भी, एक सब आँख एक सब पर्दा, एक तमाशा है दीदो दिल भी, एक सब आँख एक सब पर्दा, अब कहाँ और रास्ता कोई, अब कहाँ और रास्ता कोई, खो गया रास्ते में हर रास्ता, अब कहाँ और रास्ता कोई, खो गया रास्ते में हर रास्ता, यूं तो अपने सिवा नहीं कोई, यूं तो अपने सिवा नहीं कोई, फिर भी अपने सिवा नहीं पर्दा,
یوں تو اپنے سوا نہیں کوئی، پھر بھی اپنے سوا نہیں پردہ، عقل کا بھی نہیں کوئی پیکر، عقل کا بھی نہیں کوئی پیکر، عقل کو بھی کوئی کرے سجدہ، عقل کا بھی نہیں کوئی پیکر، عقل کو بھی کوئی کرے سجدہ، بیتے لمحے کا ذکر کیا کیجئے، بیتے لمحے کا ذکر کیا کیجئے، بیتا لمحہ ابھی کہاں گزرا، بیتے لمحے کا ذکر کیا کیجئے، بیتے لمحے کا ذکر کیا کیجئے، بیتا لمحہ ابھی کہاں گزرا۔ پانی اٹھانا، میری بوتل اٹھاتا بلکہ مجھے کہنا چاہیے، جو گھر پہ ہے وہ نہیں ہے والی۔ ایک ایک نظم ہے، ماحصل اس کا نام ہے، شاید ایک دفعہ ایڈمنٹن میں پڑھی تھی غالباً۔ جو کچھ پڑھا برا کے بھلا رائے گا نہیں، جو کچھ پڑھا برا کے بھلا رائے گا نہیں، جو کچھ ملا صحیح کے غلط جی کے ساتھ ہے، جو کچھ ملا صحیح کے غلط جی کے ساتھ ہے، سب جی کے ساتھ ہے، بس ہے یہی متاع ہنر فن کی زاد راہ، بس ہے یہی متاع ہنر فن کی زاد راہ، خود سے گریز پا، خود سے گریز پا حرف برہ نہ پا، خود سے گریز پا حرف برہ نہ پا، ہر لفظ جو پڑھا، حرف برہ نہ پا ہر لفظ جو پڑھا، دانش کی بارگاہ ہر لفظ جو پڑھا، دانش کی بارگاہ ہر لفظ جو پڑھا، ہر نقطہ سنگ میل رہے آگہی کا تھا، ہر نقطہ سنگ میل رہے آگہی کا تھا، ہر مد میں زندگی کے نشیب و فراز تھے، ہر مد میں زندگی کے نشیب و فراز تھے، مانوس ساز تھے، زیر و زبر کے جیسے فضا انقلاب کی، زیر و زبر کے جیسے فضا انقلاب کی، رو اضطراب کی، ہر پیش گویا راز تھا ایک اور راز کا، ہر پیش گویا راز تھا ایک اور راز کا، ایک انکہی سی بات کے لفظوں کا فاصلہ، ایک انکہی سی بات کے لفظوں کا فاصلہ، ہر موڑ کہہ رہا تھا فسانہ حیات کا اس کائنات کا، ہر موڑ کہہ رہا تھا فسانہ حیات کا اس کائنات کا، تھا حرف حرف حرمت معنی کا پاسباں، تھا حرف حرف حرمت معنی کا پاسباں، بین السطور میں تھی مگر اصل داستاں، بین السطور میں تھی مگر اصل داستاں، بے صوت و بے نوا حرف برہ نہ پا، حرف برہ نہ پا، بین السطور پڑھنا یہ پڑھنا سکھا گیا، بین السطور پڑھنا یہ پڑھنا سکھا گیا۔ اس میں بھی کسی سے مشاعرے میں جو پڑھی تھی وہ ہے سنو، ہاں پڑھا، ابھی تو پڑھی تھی کچھ دن پہلے، ایسا کچھ جو تمہاری نہیں یہی پڑھتے تھے، نسبتاً نئی نظم ہے، اس کا عنوان ہے سنو، سنو یہ خوف یہ وحشت، یہ ظلم یہ دہشت، سنو یہ خوف یہ وحشت، یہ ظلم یہ دہشت، یہ بے سبب کا جھگڑنا، یہ بات بات پہ جنگ، نہ دشمنوں پہ عنایت نہ دوستوں پہ کرم، کسی کمی کا اشارہ ہے یہ جنوں جو ہے، کسی کمی کا اشارہ ہے یہ جنوں جو ہے، درندگی کا تقاضا ہے کچھ تو خون جو ہے، کچھ تو خون جو ہے، بلند و پست میں ایک سمت کا تفاوت ہے،
बुलंद व पस्त में एक समत का तफावत है, बस एक तौर पे इसरार है दीवानापन, बस एक तौर पे इसरार है दीवानापन, भलाई और बुराई है ज़िंदगी का चलन, भलाई और बुराई है ज़िंदगी का चलन, हमेशगी से सवा है हमेशगी का कहन, हमेशगी से सिवा है हमेशगी का कहन। यहाँ पे बहर बदल गई है बावजूद। सुनो ये सोज़ ये उल्फत, सुनो ये जुल्म ये वहशत, सुनो है एक सब फितरत, सुनो है एक महज आदत, मगर ऐसे नहीं होता। सुनो है एक सब फितरत, सुनो है एक महज आदत, सुनो होना तो है मुमकिन मगर ऐसे नहीं होता। कोई ऐसे नहीं कहता, कभी दरिया कोई भूले से भी उल्टा नहीं बहता, कभी दरिया कोई भूले से भी उल्टा नहीं बहता, अगर उल्टा बहे दरिया तो फिर दरिया नहीं रहता, अगर उल्टा बहे दरिया तो फिर दरिया नहीं रहता, नहीं दरिया नहीं रहता। सुनो ये हुस्न है जीवन, सुनो ये हुस्न है जीवन, हिना बंदी चमन बंदी, चमन बंदी हिना बंदी, है कोई रंग का पैकर कोई खुशबू का सूरतगर, चमन बंदी हिना बंदी है कोई रंग का पैकर कोई खुशबू का सूरतगर, कहो ये हुस्न है जीवन, कहो जीवन है एक सागर, कहो ये हुस्न है जीवन, कहो जीवन है एक सागर, है इस सागर में भी मोती, है इस सागर में भी मोती, हजारों रंग के मोती, हजारों शक्ल के मोती, यूं ही सदियों से रहते हैं, सदा एक साथ बहते हैं, यही किरणों से कहते हैं, कहो दरिया कोई चाहे भी तो उल्टा नहीं बहता, यही किरणों से कहते हैं, कहो दरिया कोई चाहे भी तो उल्टा नहीं बहता, कहो उल्टा बहे दरिया तो फिर दरिया नहीं रहता। सुनो ये पल है क्या कहता, सुनो ये पल है क्या कहता, हम हैं सपनों के सौदागर, हम हैं सपनों के सौदागर, सुनो ये पल है क्या कहता, हम हैं सपनों के सौदागर, हमारी बात में जो आ गया अपना नहीं रहता। सुनो ये पल है क्या कहता, हम हैं सपनों के सौदागर, हमारी बात में जो आ गया अपना नहीं रहता, नहीं अपना नहीं रहता, सुनो अपना नहीं रहता। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, पुरानी गज़ल है, नज़र से दिल खफा है, नज़र से दिल खफा है, मेरे अंदर मेरा दुश्मन छुपा है, नज़र से दिल खफा है, मेरे अंदर मेरा दुश्मन छुपा है, सभी को रास आ जाती हैं खुशियाँ, सभी को रास आ जाती हैं खुशियाँ, खुदा जाने मुझे क्या आरज़ा है, खुदा जाने मुझे क्या आरज़ा है, तमाशागाह थी कैसी वो दुनिया, और अब ले दे के एक मंजर बचा है, तमाशागाह थी और अब ले दे के ये मंजर बचा है। हकीकत तो हकीकत ही रहेगी, हकीकत तो हकीकत ही रहेगी, ज़माना है बहुत कुछ कह रहा है, ज़माना है बहुत कुछ कह रहा है, तुम्हें शायद मोहब्बत रास आए, तुम्हें शायद मोहब्बत रास आए, इसी शायद में जीने का मज़ा है, इसी शायद में जीने का मज़ा है। उमर ये तुम्हारे लिए है। हर एक मज़हब में है बेआसरापन, हर एक मज़हब में है बेआसरापन, हर एक मज़हब में कोई लापता है, हर एक मज़हब में है बेआसरापन, हर एक मज़हब में कोई लापता है, जिसे चाहे बना लो अपना वाली, जिसे चाहे बना लो अपना वाली, हर एक का अपना अपना तजुर्बा है,
बेहद शुक्रिया आपकी समातों का। मुशायरे का अख्ताम होता है। मैं माइक को मुंतज़मीन के हवाले करती हूँ। जनाब जमशेद साहब का बहुत शुक्रिया। मुझे आज ही मालूम हुआ कि आप टोरंटो में भी प्रोडक्शन वगैरह करते रहे हैं और बहुत इस फील्ड के प्रो हैं, तो बेहद शुक्रिया आपकी मसाई का, बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी पीसीए की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है और सब आप लोगों के तावन का शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया। आप लोगों ने इतने अच्छे शेर सुनाए और पीसीए की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और जितने मेहमान हमारे आए हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग चाहते हैं किसी तरह के प्रोग्राम मन से मन होते रहें और आप लोग आते रहें और एंजॉय करते रहें। और इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम हम लोग ख़त्म करते हैं और खाना तैयार है, तो आप लोग प्लीज़ खाना खा के जाना।